Today we learn about linkage. You already know, according to Mendel, the all characters are free to assert anyone, that is law independent assertment. The ratio of law independent assertment is 9:3:3:1. According to Mendel, the characters that present in the body of organism that are transferred to their progeny that independently. No one characters link with other characters, no one character bound with other character. And Mendel, 7 characters, they choose with them and they found the same result, that law of independent assortment. Then they wrote these laws. And the ratio is the fixed 9:3:3:1. But after some time discovery of the Mendel, the T.H. Morgan and Castile experimented on the pea plant, that is no garden pea, the sweet pea, that is called Lathyrus odoratus. Lathyrus odoratus. Lathyrus odoratus. Lathyrus odoratus, sweet pea. They experimented on the sweet pea, and then they saw, they take 2 characters. One is the flower color and the shape of pollen grain. 2 pairs of contrasting characters. First thing, flower color, and second thing, that is the second character, that is the shape of the pollen grain. They found that purple color flower dominant over red flower, and the long pollen grain dominant in round pollen grain. This is the pollen. The long pollen grain dominant over round pollen grain, and the purple flower dominant to red flower. उन्होंने देखा क्या कि पर्पल फ्लावर जो है रेड फ्लावर पर डोमिनेंट था, और लॉन्ग पॉलन ग्रेन जो है राउंड पॉलन ग्रेन पर डोमिनेंट था. 2 करेक्टर एक साथ लिया, फ्लावर कलर और दूसरा लिया शेप ऑफ द पॉलन ग्रेन. तो व्हाट दे फाउंड दैट दे राइट हियर कैपिटल P फॉर पर्पल फ्लावर and long pollen grain capital L according to that is rule of the Mendel and system terminology. Then they cross with red flower, small p with the round pollen grain. This is the small l. Cross then F1 generation, all flowers purple and the pollen grain is long, purple and long pollen grain. According to that is the first law of Mendel, one character dominant over other character. Then these dominant to this, purple dominant to red, then purple and long pollen grain. Purple and long pollen grain, all flower, purple and long pollen grain. But in F2 generation, according to Mendel, the ratio is 4 types of combinations. Then the formation of gamete, but they found here, according to Mendel, the ratio is 9:3:3:1, because Mendel's law of independent assortment, all characters are free to assert. कोई सभी कैरेक्टर सबके साथ जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं. लेकिन इन्होंने पाया क्या इसमें, जो रेशियो था मेंडल रेशियो, डाई हार्विड क्रॉस रेशियो 9:3:3:1, वो चेंज होकर हुआ क्या 11:1:1:3 रेशियो चेंज हो गया. 11 जो थे लॉन्ग पर्पल फ्लावर लॉन्ग पॉलन 11 थे, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पॉलन ग्रेन जो डोमिनेंट वाली 11 आई, पर्पल फ्लावर राउंड पॉलन ग्रेन 1 आई, रेड फ्लावर लॉन्ग पॉलन ग्रेन 1 आई, और रेड फ्लावर राउंड पॉलन ग्रेन 3 आई. दिस रेशियो इज नो अकॉर्डिंग टू Mendel's rule, that is 9:3:1. It is fails. Then they observe, Castile and T.H. Morgan, they observe that this is the that is the rules, that is Mendel's law fails. Then they observe and then they use a term linkage. Linkage means that is one character link with other character. लिंकेज का मतलब होता है जुड़ना.
एक कैरेक्टर के साथ दूसरा कैरेक्टर जुड़ा होता है। द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। क्योंकि जनरेशन अब उसी पर उन्होंने लिखा, कैस्टिल और टी.एच. मॉर्गन ने लिखा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। क्योंकि यहाँ मेंडल्स रेशियो फेल कर गया, फिर टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज की खोज ड्रोसोफिला में की। किसमें की? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इज दैट इज फ्रूट फ्लाई। द रेशियो इज 11:1:3। देन दे ऑब्जर्व, दे आल्सो वर्क ऑन दैट इज द कैस्टिल एंड सेकेंड दैट इज द टी.एच. मॉर्गन एंड कैस्टिल। टी.एच. मॉर्गन and Castile that is they work on, that is T.H. Morgan work on Drosophila fruit fly। और उसमें उन्होंने देख करके क्या किया? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज दिया। ये लिंकेज क्या होता है? द क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द वन सिंगल क्रोमोसोम और सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंक्ड जीन। द कैरेक्टर इज कॉल्ड लिंक्ड कैरेक्टर एंड दे शो लिंकेज जनरेशन बाय जनरेशन बिकॉज एट द गैमेट फॉर्मेशन नो जीन इज सेपरेटेड। गैमेट इज in gamete formation there is no gene is separated. It is the separation of the chromosomes. A chromosome present on the pairs. Suppose this is the one chromosome. Suppose this is the one chromosome, that homologous chromosome. Suppose this is the homologous chromosome. Suppose this is the homologous chromosome. Here is that is the genes. Suppose A. Here is the genes. Suppose A. These are that is the genes, that is the homologous chromosome, maybe that is A, maybe small a. But suppose here the gene B, this is second locus, here the gene B, here the gene B. If A and B present in that is the, here second gene B, this is the gene B. Suppose both genes present on the A and B same chromosome, then they are linked. Because gamete formation they separate. Gamete formation they separate A here and B here. This is the A here and B here. So they go to with them. The chromosome present on same chromosome at the gamete formation they go simultaneously with them, one generation to other generation. The character which is present on the same chromosome, the gene transfer one character. यदि ये कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर हैं तो ये प्रोजनी में साथ साथ जाएंगे, विथ देम, एक दूसरे के साथ जाएंगे। तभी ये रेशियो इंडिपेंडेंट असॉल्ट नहीं करेंगे। यह कैरेक्टर इंडिपेंडेंट असॉल्ट नहीं होगा। क्यों? कि एक ही जीन पर हैं। तो सेम जीन पर, सेम क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम पर जितने जीन होंगे वो साथ साथ जाएंगे। क्यों? कि इनमें जो है सेपरेशन नहीं होते। सेपरेशन तो उनको होते हैं जो अलग। सपोज करो अगर ऐसा होता, ये क्रोमोसोम होमोलागस ये है, ये दूसरा होमोलागस क्रोमोसोम इसका ये है। सपोज करिए क्रोमोसोम है, इस पर ये पोजीशन ए है, ए इस पर है और बी जो है आपका इस पर है। अगर ये इस पर होता और बी इस पर होता, या दो क्रोमोसोम दो होमोलागस पेयर होते हैं। सपोज करिए एक ये है और इसका होमोलागस ये है, ये यहाँ है और इसका ए यहाँ है। दूसरा क्रोमोसोम ये है, सपोज करिए, सपोज करिए है, यहाँ इसका बी है और यहाँ इसका बी है। ये डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं। यह क्रोमोसोम पर इसका होमोलागस है, इसका होमोलागस है। यह असॉर्टमेंट का रूल फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ये किसको फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। और ये क्या फॉलो करेंगे? जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं। जैसे यहाँ आपको लिखा कि जीन एक ही पर हैं, दोनों जीन कहाँ हैं? जैसे सपोज करिए एक ही क्रोमोसोम पर हैं। सपोज करिए यहाँ ए है और यहाँ जो है, यहाँ ए है, यहाँ बी है आपका। दूसरे पर देखिए क्या है, यहाँ इसका ए है और यहाँ इसका बी है। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे? साथ साथ जाएंगे। देखो यहाँ ए बी साथ हो, ए बी साथ हो, तो यह लिंकेज है।
यह है लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन। यह लिंक्ड जीन यह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस चार्ट के रूल को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? कि गैमिट फार्मेशन में दोनों साथ साथ जाएंगे। इसीलिए वहाँ द रेशियो जो आता है मेंडल्स रेशियो 9:3:3:1 वो फेल करके कि हमने दिखाया 11:1:1:3 आ गया। इसी तरह ड्रोसोफिला पर वर्क करके उन्होंने देखा मेंडल के रूल फॉलो नहीं हो रहे थे, तो मेंडल ने ऐसा लिखा कैसे? क्योंकि मेंडल ने जो जो पेयर कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर थे। अगर एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने, उन्होंने 7 पेयर सेलेक्ट किए थे, 4 क्रोमोसोम थे। अब जो जो एक साथ कैरेक्टर लिए, जैसे उन्होंने क्या लिया था, सीड शेप लिया था, कार्टिलेजन कलर, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। अगर एक ही पर रहे होते सीड शेप और कार्टिलेजन कलर, तो उनको यह रेशियो 9:3:3:1 नहीं आता और रूल नहीं लिख पाते लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ट में। तब देखिए, अब इसलिए मेंडल इस समझ लो कि सौभाग्यशाली थे कि संयोग से उन्होंने जिसको चुना था वो अलग अलग क्रोमोसोम पर कैरेक्टर हो गए, वरना उसी समय वो लिख नहीं पाए होते लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ट में। बाद में टी.एच. मॉर्गन ने एक नई चीज़ खोज की, उसका नाम रखा लिंकेज। और जितने क्रोमोसोम होते हैं, यह लिंकेज की क्रोमोसोमल थियरी दिया उन्होंने, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। उन्होंने कहा कि ऑल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर बाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज दिया, थियरी ऑफ लिंकेज। किसने दिया? टी.एच. मॉर्गन और कैस्टिल मिल करके दिए। उन्होंने कहा क्या इसमें कि ऑल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन बाई क्रोमोसोम्स। अ क्रोमोसोम कंटेन्स मेनी जीन, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, दिस कंटेन्स मेनी जीन्स, वन क्रोमोसोम कंटेन्स मेनी जीन। जीन सपोज कर लो ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। उन्होंने कहा क्या कि वन क्रोमोसोम कंटेन्स मेनी जीन, और जीन्स आर अरेंज इन ए लीनियर फैशन, जीन्स आर अरेंज इन ए लीनियर फैशन। एक लीनियर क्रम में, रेखीय क्रम में जीन जुड़ा होता है। और देखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोमल थियरी क्या कहती है लिंकेज की कि जीन्स आर दैट इज प्रेजेंट इन पेयर्स, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस। जहाँ इस पर होगा जीन्स वहीं इस पर भी होगा, सेम होमोलॉगस होते हैं। अब ये देखिए दूसरा इसका एनालॉगस है, देखिए दूसरा जीन है, दिखा रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन। देखिए यह क्या एनालॉगस है, ये देखिए ये दोनों आपस में होमोलॉगस है, यह एनालॉगस है। अब जहाँ इस पर जीन होगा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इस पर भी यहाँ जीन के लोकस हैं। कहा क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन इन द पेयर्स, और वन पेयर्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड होमोलॉगस, होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम पर जितने जीन होते हैं दैट आर लिंक्ड जीन, दे ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी, दैट इज द सेम वे। अब यह जो गैमिट बनते समय ये अलग होते हैं क्रोमोसोम, तो इस पर जितने जीन होंगे साथ जाएंगे, और इस पर जितने जीन होंगे वो गैमिट में साथ जाएंगे। अब देखिए ये लिंक्ड कैरेक्टर हैं, इसके साथ ये लिंक्ड हैं। तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर खोजे गए डिफरेंट एनिमल्स में दैट आर लिंक्ड गो टू प्रोजेनी विथ देम, व्हेन दे आर लिंक्ड कैरेक्टर देन डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने मेंडल के इंडिपेंडेंट उन्होंने कहा कि जीन लीनियर फैशन में होते हैं, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के समय जो बताया था वह गैमिट के समय क्रोमोसोम सेपरेट होके जाते हैं। और मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, गैमिट में हाफ होते थे, एक इसमें से एक इसमें से। अब इस पर जितने जीन हैं एक साथ जाएंगे, इस पर जितने जीन हैं एक साथ जाएंगे। सपोज करो कि यहाँ जो है फ्लावर कलर है, पर्पल फ्लावर कलर, और यहाँ क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ है पॉलन ग्रेन शेप, शेप ऑफ पॉलन ग्रेन, दैट इज द शेप है। तो यहाँ देखिए ये दोनों साथ साथ जाएंगे, जिस शेप के होंगे साथ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। जीन्स अरेंज ऑन द क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन, तो लीनियर रेखीय क्रम में जुड़े होते हैं आपस में। और एक क्रोमोसोम बहुत जीन्स रखता है, दैट आर ट्रांसफर जनरेशन बाय जनरेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी। आपको मैंने बताया इस प्रकार से इन्होंने एक चीज़ और खोज की,
लिंकेज ग्रुप, एक ये और देख लीजिए आप, यहीं पूछा था लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या है? अब एक पैकेज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, 1 क्रोमोसोम पर जितने जीन्स होते हैं उतने ग्रुप बनते हैं। अब ग्रुप कितने होंगे? हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड जीनोम, और जितने सेट होते हैं दैट जीनोम इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। अब देखिए लिंकेज ग्रुप आपको देखना हो, ह्यूमन में हाउ मेनी क्रोमोसोम? 23 पेयर्स। एक पेयर्स दैट इज 1 होमोलॉगस होता है, सेम होता है, इसलिए इसमें लिंकेज ग्रुप देखा जाए। ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन, हैप्लॉइड सेट वही लिंकेज ग्रुप होता है। जैसे ह्यूमन का लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप देखिए ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप कितना आएंगे? 23। क्यों आएंगे? देयर आर 23 पेयर्स, 1 पेयर ई होमोलॉगस, लिंकेज ग्रुप 23। वहीं देखिए आप, अभी आपको देखना पी में पाइसम सटाइवम, पी की पाइसम सटाइवम, पी में देखिए कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? इसमें 7 पेयर्स हैं तो 7। उसी प्रकार से 200 फिला में देखिए 4 पेयर्स होते हैं, 200 फिला में कितने होंगे? 4। जितने क्रोमोसोम होंगे एक सेट वही लिंकेज ग्रुप होता है। तो हमने बताया लिंकेज इज द फिनोमेनन दैट द क्रोमोसोम present on the genes present on the same chromosome transfer parent to their progeny generation by generation. A haploid set of chromosome is called linkage group. अब देखिए लिंकेज जो है, लिंक जीन साथ साथ जाते हैं फ्रॉम 1 जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये लिंकेज कैपेसिटी कितनी होती है? नियरेस्ट जीन हैव लिंकेज, नियरेस्ट जीन हैव द लिंकेज इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द 2 जीन। लिंकेज is proportional to, that is the distance of the gene, inversely proportional to distance of the gene। यह इसका मतलब हुआ कि लिंकेज कितना तगड़ा होगा जितना कि इनके बीच की दूरी कम होगी। 2 जीन के बीच के दूरी जितनी कम होगी उतना ही लिंकेज प्रबल होगा। द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द लिंकेज, डिस्टेंस ऑफ द जीन, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द जीन। जो नियरेस्ट जीन हैव लिंकेज एंड फारदेस्ट जीन हैव क्रॉसिंग ओवर। तो एक दूसरा टर्म आपको पढ़ाएंगे क्रॉसिंग ओवर नेक्स्ट वीडियो में कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो लिंकेज तो आपको बताया हमने, फिर बताएंगे रिकम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज क्या, लिंकेज की कैपेसिटी कितनी अधिक होती है? जितना उनके जीन के बीच की दूरी अधिक होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही नज़दीक होगा एक जीन दूसरे जीन से उतना ही जो है लिंकेज अधिक स्ट्रांग होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।